we were watching about in last lecture? Quantitative analysis of fiber mixtures. Okay, quantitative analysis of fiber mixtures means blend. Okay, how to calculate blend in a material. Okay. Okay, can you able to see this PowerPoint presentation? Can you able to see Yes, this? sir. Okay. So I think in last lecture I have given you this numerical and I ask you to calculate, right, if possible. Uh, is there anybody who has calculated this values of blends? Anyone? Is there anybody who performed this exercise? Okay, I think let me see the messages if anyone drop. Okay, I think you are not calculated. Okay, ठीक है, we'll see today how to calculate this. I just asked to uh, calculate this numerical because I have already given the derivation and formulas regarding this numerical, right? So initially, what is given here, a blend has been found to be composed of cotton and terling, right? Cotton is there and terling fiber is there, and terling is a actually variety of your polyester fiber. So it has been given two fibers, cotton and terling, and that the solvent chosen is 75% sulfuric acid in order to dissolve cotton. Okay, here we are dissolving the cotton by taking the 75% H2SO4. After the treatment in light petroleum, the sample has a dry mass of 480 milligrams. So when you carry out the treatment, right, then after the treatment, when you take a dry mass, it will be around 480 milligram, right? 480 milligram means W is here 480 milligram. The mass of the residue, here the residue is sterolene. When we take this sterolene after dissolution, right, because when we dissolve the material, cotton will get dissolved and terling will remain as a residue. Terling will remain as a residue, and if we dry it and take a weight, it will be around 156 milligram. So one dry weight of the residue is 156 milligram. Then here we have to calculate the blend percentage. In order to calculate the blend percentage, certain things they have given, just such as in last lecture we have seen, during handling of the material, waste will go, right? Some fiber waste will go. So that correction factor they have taken. For insoluble it is 1.02 and I think for soluble it is 1.06, right? 1.06. Then during the pre-treatment also there will be a certain amount of loss will be there for the insoluble component, and that loss they have given as a 1, right? 1 D, right? And also they have given the moisture regain values. For cotton it is 8.5, for terling it is 0.4. So they have given A as 8.5% and B as 0.4%. Okay, so these are the given things. Now by using the formulas we can able to calculate the blend percentage. This is very simple type of numerical actually. Which formula we have seen, how we can able to calculate the insoluble component. Here you don't consider the loss, right? Pre-treatment loss or fiber loss or moisture regain. If you won't consider all these things, how you will calculate the insoluble component? What formula you will use? Percentage of fiber. I have given the formula in last lecture. You just tell me which formula I should use.
Here, initially, you don't want to consider any fiber loss. You don't want to consider moisture regain values. And then if we want to calculate the blend percent, which formula you will use? You people were present for the last lecture. Hundred P bracket in 1 plus B upon 100 upon P plus 1 plus B upon 100 plus 100 minus P bracket in 1 plus A upon 100. No. That is not the problem. 100 P. 100 Huh. 100 into R divided by W. Yes. 100 into R divided by W. Right. Because we don't want to consider any type of fiber loss. Right. 100 R upon W. Right. That is the right answer. So calculate insoluble component, that is terylene, by using formula 100 R by W, and then tell me the answer. How much percentage of terylene you found? 32.5%. 32.5%. Okay. Terylene is 32.5. And cotton? 67.5%. Yes, 67.5%. Cotton is 67.5%. See, those who are unable to get this, I will solve for them. So insoluble component is here terylene. Insoluble component is here terylene. So terylene is equal to, I will use this formula 100 R. R is nothing but the residue, right? 100 R upon W. So 100 into R. R is what here? This is R, residue, terylene, right? Which will be 156 milligram. 156 milligram divided by W. W is what? After the pre-treatment in light petroleum, the sample has dry mass of 480. This is our sample. Sample means what? It has a terylene and cotton, both. So one dry mass of that sample is 480, means your W is 480. W is 480. When we do this calculation, we'll get the answer of 32.5. We'll get the answer of 32.5, and percentage, and soluble component here, it is cotton. So it will be 100 minus
insoluble component, that is 32.5, which will be equal to 67.5%. 67.5%. 67.5%. Now, what you have to consider? You have to consider the fiber loss. Now you have to consider the fiber loss. During handling of the sample, we consider that there will be some fiber loss of soluble component, there will be some fiber loss of insoluble component. So that corrections we have taken here. For insoluble, we have taken 1.02, Z is 1.02, and for soluble component, we consider it as 1.06. 1.06. Now by considering this, you have to calculate the blend percentage. Now which formula you will use when we consider this? When we consider the Z and Y, which formula I am to use? For चलो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान नहीं देते पढ़ाते समय. लास्ट लेक्चर में मैंने सब बताया था. जब लॉस कंसिडर करते हैं हम फाइबर का, व्हेन वी कंसिडर द फाइबर लॉस, इन दैट केस वी यूज द फॉर्मूला इनसोल्यूबल कंपोनेंट इज इक्वल टू, आप पूरा लिखो आपकी बुक में, इनसोल्यूबल कंपोनेंट इन ब्रैकेट टेरलिन इज इक्वल टू 100 अपॉन y by z into bracket w by r minus 1 bracket complete plus 1. So this formula you have to use, 100 upon y by z in bracket w by r minus 1 plus 1. Now put the values, everything you know. W is 480, R is 156, Y is 1.06, Z is 1.02. Then calculate this insoluble component and tell me what is the answer. Also calculate soluble component. That is cotton. How much percentage you got? Insoluble component. Sterilin 31.60. Okay. So here 31.60% percentage of sterilin is there, and for soluble it will be 100 minus 31.60. Calculate, it will come around I think 68%. जो भी आएगा वो लिखो आप
वहाँ पे। अभी कंसिडर कितना आता है बताओ तो, कितना आता है ये? 68.4, ओके 68.4, 68.4%. Now during treatment, during this dissolution process, there will be some loss of terline also, insoluble component. There will be some loss of insoluble component also. So that correction also we have to make. So for that purpose, what they have given that correction as D is equal to 1. As this value is 1, I don't think so there will be any change in the answers, because the value of D is 1. Here what formula we have used, the same formula we have to use, just we have to take here D, dr, 100 upon y by z, w by dr minus 1 and then plus 1. So this D we have to take here, but the value of this D is 1. As the value of D is 1, there will not be any change in the answer. So answers will be same, 31.60% for insoluble component and 68.4% for soluble component. Okay. So we can just rewrite, or you can just make a one statement. As the value of D is 1, this won't alter the values, right, by considering the loss. Therefore, insoluble component is equal to 31.60% and soluble component is equal to 68.4%. Now, when you consider the regain values, right, for cotton and terline, then the formula what we can use is insoluble component terline is equal to, now you can use that formula 100p 100p, so I can take here sorry, 100p 1 plus p by 100 plus 100 minus p 100 minus p to 1 plus a by 100. कितना था आंसर? a by 100 है वो, a by 100. How much answer will come for insoluble component? आप बता सकते हो, क्योंकि अभी वो चला गया मेरे स्क्रीन के ऊपर से, फिर से देख नहीं सकता मैसेज. आपका मैसेज देख सकता नहीं मैं अभी फिलहाल. आप आंसर मुझे बता दो कितना आता है, इनसोल्यूबल कितना आता है? थर्टी परसेंट. 30%. तो सोल्यूबल आएगा 70%. 100 माइनस 30 दैट इज 70. का मतलब है, सॉरी 76 हो गया वो. सो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लेंड है वो 70-30% का है. आपका ब्लेंड जो है 70-30 का है. 70% कॉटन इज देयर एंड 30% टेरलिन इज देयर. आपका जो ब्लेंड है आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, तो कॉटन इज 70% and terline is 30%. So the blend proportion is 70-30. So in this way we have to solve this numerical. ठीक है. तो
here we have completed our unit 1, right, of textile mathematics. Now we'll start with the unit number 2 without wasting much of time. So in unit 2, we are going to deal with the numericals based on opening, cleaning, drafting, card calculations, draft calculations of draw frame, combing, right? So again, to carry out these numericals, you must have some basic knowledge about all these things: blow room, opening, cleaning, card, draw frame, comber. So you should have some basic knowledge of these machines. Then and then only we can able to understand this type of numericals. So we'll proceed. Okay, that point you know. Density, how to calculate density. Here we are dealing with the bell density. Right. So density is nothing but the mass per unit volume. All of we know that what is bell, right? Bell has certain dimensions, right? So it has certain length, width, breadth, right? In which actually we try to accommodate our fiber in compressed form. So it is very much necessary to find the density of the bell. So here we'll try to find out. This is the numerical. The dimensions of bell of cotton are 1.45 meter into 0.65 meter into 0.46 meter. On the mill weighing machine, on the mill weighing machine, its mass including the wrapping and metal bars is, metal brass is 235 kg. Make a rough estimate of bell density in kg per meter cube. In kg per meter cube. So here you have to calculate the bell density. You just calculate and tell me what is the answer. You calculate the bell density and tell me. निकला क्या डेंसिटी? 48.45. कितना था? कितना बोला? 8.45. नहीं, आपका आवाज कट होके आ रहा है. 48.45. 248. 248 बोला क्या? जस्ट होल्ड, मैं थोड़ा सा इसको यही कर लेता हूँ. हाँ, now you can put a message. You can put the message because your voice is not audible to me. How much is the density? 48 kg, no. Tanvi Patil. Okay. Tanvi, tell to others how you calculated this. Your answer is right.
542 kg per meter cube. How you calculate it? Sir, density equal to mass upon volume. You have calculated volume, right? Na? Yes. Okay. Yes. Okay. So she is right actually. Density is mass upon volume, right? Those who are unable to understand, please see. I am solving here. We know that density equal to mass by volume, right? Mass we have here 235 kg. We are having mass 235 kg, but volume we don't have. But we can calculate the volume because we know that how is the bell looks like. We know bell is like this, right? It has certain length, it has certain length, it has certain width, and also it has certain breadth. This one. So that these values it has been given here: 1.45 meter length, 0.65 meter width, 0.46 meter breadth. So it is given here. We can calculate the volume of this part. When we calculate volume, volume is equal to this length, this width, and this breadth. What is the formula? L into W into P. So 1.45 is told 1.45 into 0.65 into 0.46. When you do this calculation, you will get the volume. I think about 0.433. 0.433 meter cube. 0.433 meter cube. Now you are having volume, you have a mass. Now you can calculate density, bell density. So mass is 235 kg and volume is 0.433. When you do this calculation, you will get the answer 542 kg per meter cube. Kg per meter cube. So in this way you have to solve this numerical. So you get the answer of 542 kg per meter cube. 542 kg per meter cube. So that is your bell density. Same thing is given here. Volume of bell, length into breadth into height. We calculate this, get the 542 kg per meter cube. Now similar type of example is there. A sculpture delivers cotton in the form of sheet of fibers rolled up into a lap 1 meter wide. The length of the sheet is 40 meter. The diameter is 0.6 meter. So the lap volume will be. Now there is a lap. Actually that lap is rolled, right? It is rolled. It means what? It forms like a cylinder, right? Cylinder-like structure where it has a diameter of 0.6 meter, right? And the length is 1 meter. It is wide, 1 meter wide, right? So when it rolled up, right, we can consider that it will be a 1 meter, right? Then here again we'll use the formula density is equal to mass upon volume. Here if suppose mass is 18 kg, then what is the density? That is the question, right? This mass you will get here in the question, right? So again we know the mass, we have to calculate the volume. But here how we can calculate the volume? As we know, the bell is rolled, lap is rolled, so it forms a cylinder type structure. So lap is rolled.
roll length is 40 meter. The roll length is 40 meter. 1 meter. The lap is 1 meter wide, right? And diameter is this one 0.6 meter. Then how to calculate the volume? What is the formula? What is the formula? Pi r square L, right? Pi r Yes, sir. square, pi r square L. So r is given, that is diameter is given. You can make d by 2, that is r, and L is also given, that is 1 meter. That is 1 meter. So we can calculate the volume. We can calculate the volume pi r square L by using this formula, right? Formula is pi r square L. So pi, we know that value of pi. R is d by 2. Here d is 0.6 divided by 2 will become r square, pi r square, into L. L is 1. When we do this calculation, again pi is there, 0.6 square is there, because we are making square now. 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे 4 लिखा, into 1. तो सेम ये यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है? When you do this calculation, you will get the answer 0.283 meter cube. 0.283 meter cube. Now you got the volume. You just put it here, right? You will get the answer 63.3 kg per meter cube. 63.3 kg per meter cube. तो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम है. ये पिछले एग्जाम्पल का रिपीटेशन है, खाली वहाँ पे वो आपका बेल था, है ना, उसका फॉर्म अलग रहता था, और यहाँ पे लैप है. यहाँ पे लैप है, लैप का फॉर्म अलग रहता है, लैप सिलेंड्रिकल रहता है. तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है मैथमेटिक्स का. जिसको अगर नहीं है तो फिर कठिन है वो समझाना, आपको डिफिकल्ट जाएगा. क्योंकि वॉल्यूम वगैरह निकालना कैसे, ये चीज़ें बहुत सिंपल है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस एज में अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, है ना, तो कैसे क्या करेंगे फिर? सर्कल है तो क्या करेंगे, सिलेंडर है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे, वो कैसे निकालेंगे? तो ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको मालूम होना बहुत जरूरी है. हेलो सर. सर उधर जैसे कि लेंथ ऑफ शीट 40 मीटर बोला है ना सर. हाँ, हमने पाई आर स्क्वायर एल का फार्मूला लगाया है. बराबर. जो रोल्ड अप इनटू लैप था वो 1 मीटर वाला लिया है उधर. जो एल है 1 मीटर लिया है सर वाइड वाला. सर वो लेंथ वाला क्यों नहीं लिया सर, जो 40 मीटर है शीट वाला? वो जो 40 मीटर है वो अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया 40 मीटर, इसके अंदर चला गया 40 मीटर. वो कभी रोल किया है कि नहीं किसी चीज को? यस सर. तो वो लेंथ इधर चला गया, वो सिलेंडर बन गया, वो लेंथ गया सिलेंडर में, वो लेना नहीं है. ये देखो सिलेंडर कैसा रहता है, सिलेंडर इज लाइक दिस. यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बराबर है कि नहीं? यस सर. सिलेंडर इज लाइक दिस. तो ये 40 मीटर नहीं है, ये बात समझ लो. ये 40 मीटर नहीं है. ये कैसे 40 मीटर हो सकता है? ये 40 मीटर तो अंदर चला गया सिलेंडर के, रोल किया इसलिए आपने. तो रोल किसको किया? लैप को किया. फिर उसका लेंथ कितना था, कितना वाइड था? वो 1 मीटर वाइड था. तो वो एरिया ये आ गया, वो जो 1 मीटर की बात कर रहा हूँ ना, ये आ गया, ये एरिया है. और इसको रोल करने की वजह से वो सारा 40 मीटर इसके अंदर चला गया, है ना. मतलब क्या है, वहाँ पे मटेरियल भर दिया आपने इन शॉर्ट, उस सिलेंडर में रोल करके मटेरियल को भर दिया, है ना. तो ये डिफरेंस है उसमें क्या? यस सर. फिर हमने सर वाइड लिया है ना, जो लैब का था
हाँ, हमने क्या किया? सर हमने एक्चुअली देयर सर इज जो वन रोल्ड अप का था वो वो रोल्ड अप का कैसे ले सकते हैं आप बताओ ना, कैसे ले सकते हैं रोल्ड अप का? रोल्ड अप किया, रोल्ड अप नहीं करते तो 40 मीटर रहता वो। रोल्ड अप नहीं करते तो कितना मीटर रहता? 40 मीटर रहता। तो उस केस में वो सिलेंडर बनता क्या? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे, आप अलग वे से ले रहे हो उसको, आप समझ नहीं रहे नहीं हो। सर, जैसे कि मैं फार्मूले पे गया सर, जैसे कि पाई आर स्क्वायर यल बोला था ना, तो लेंथ तो ऑफ ये शीट सही है जो ना। कन्वर्ट जो भी कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हो गया। हाँ, तो ये फार्मूला भी सही बताया मैंने, सारी चीजें भी सही बताया, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सर जब अपना लैब कन्वर्ट हो जाता है सिलेंडर में, सिलेंडर फॉर्म में, तो वो जो 1 मीटर वाइड दिख रहा है ना, वो बन जाता है लेंथ उस सिलेंडर का। तो यस सिलेंडर सर, का आपको करना है ना, एक पेज फाड़ के ले लो, उस पेज को क्या करो आप, रोल्ड अप करो, है ना। पेज को रोल्ड अप करो, पेज का साइड वाला जो लेंथ रहता है वही लेंथ वो सिलेंडर का रहेगा। पेज का मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया पेन, कहाँ गया, आया। ये पेज है अपना, है ना, ये पेज है, ये वाइड है इतना, सपोज 1 मीटर वाइड है करके हम मान के चलते हैं, और इसको हमने रोल्ड अप कर दिया, इसको हमने रोल्ड अप कर दिया। हाँ, अब जब रोल्ड अप करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ये रोल्ड अप करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, इतना ही रहेगा। अब यस मैं सर, आपको डिफरेंस बताता हूँ, अब होता क्या है। और एक पेज ले लिया मैंने, कितना बड़ा है क्या, और ये कितना है, 1 मीटर ही है। ये कितना है, 1 मीटर है। जो पुराना वाला मैंने स्क्वायर लिया था पेज का, सपोज मान के चलो कि ये लेंथ उसका था 20 मीटर, अब ये लेंथ मैंने लिया 40 मीटर, ये लेंथ मैंने क्या लिया, 40 मीटर लिया। अब इसको मैं रोल्ड अप कर रहा हूँ, इस पेज को, इस पेज को मैंने रोल्ड अप कर दिया, तो वो क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। ये कितना है, इसको रोल्ड अप करके जा रहे हो आप, वो नहीं रहे। वही यस रहेगा सर, ना। फिर अंदर ये यस सर, कहाँ गया, फिर ये 40 कहाँ गया, 40 तो वो इसके अंदर घुस गया ना, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में घुस गया वो 40। यस सर, तो ये अपना सिलेंडर बना, तो ये डायमीटर लेना पड़ेगा और ये लेंथ लेना पड़ेगा। अब आया क्या समझ में? यस सर, यस सर, क्यों क्यों वो 1 मीटर लिया है, 40 नहीं ले सकते वहाँ पे। 40 लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो गया ना सिलेंडर में, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया ना यस उसने। सर। हाँ, इन बिटवीन सर फार्मूला पे गया था मैं, मतलब लेंथ ऑफ राइट शीट राइट, भी बोला था ना उस तरह, आया आया समझ में आया मेरे। और मीटर वाइड बोला था उन्होंने। हाँ, राइट राइट राइट, वो वाइड की वजह से आप कंफ्यूज हो गए एक्चुअली। यस सर, ये वाइड की वजह से कंफ्यूज हो गए, है ना। ये इसको वाइड बोलते हैं जब वो खुला रहता है तो। यस ठीक है चलो फिर हम आगे जा सकते हैं अभी। 10-11 मिनट है, वी कैन take another numerical. Now we'll take the numerical based on lap length. Right? Till now we've seen the two numericals of density. Now we'll see the numerical based on lap length. अब लैप ये जो है ना, ये तो ओल्ड स्पिनिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता था, सबको पता है। अभी तो मैक्सिमम स्पिनिंग इंडस्ट्रीज आर वर्किंग विद द चुटफिट सिस्टम, राइट। तो इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ लैप, देयर इज नीड ऑफ टब्स। बट अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज है कि जो ओल्ड टाइप ऑफ स्पिनिंग लाइन है उनके पास। सो इन दैट केस दे यूज स्कचर। स्कचर एक मशीन रहता है, वहाँ पे हम लैप फॉर्म करते हैं। आपको शायद पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा YM1 में या 2 में, पता नहीं मुझे कहाँ पे पढ़ा है। अपने YM1 में पढ़ा है क्या स्कचर, कहाँ पे पढ़ा है, वेर यू हैव स्टडीड दिस स्कचर? आई थिंक YM1 में पढ़ा होगा, YM1 में या मैनेजमेंट 1 यस में, सर, या यस सर, you have studied स्कचर, right? So what is the objective of Sketcher, function of Sketcher? To form the lap, right? Which will be the feed material for the card, which will be the feed material for the card. तो लैप फॉर्म करना है, तो ये जो लैप रहता है उसका लेंथ मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मास पर नेट लेंथ निकालते हैं लैप का, उसमें अगर वेरिएशन आया तो प्रॉब्लम होता है। तो एक पर्टिकुलर लेंथ का हम लैप बनाते हैं, राइट।
तो कितना लेंथ लैप में गया है ये हमको कैसे पता चलेगा, कितना लेंथ लैप में गया है कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स हैं, हम थ्योरेटिकल पार्ट में जाने नहीं वाले, बट शॉर्टली हम देखेंगे उसको कि हाउ यू विल कंट्रोल द स्कचर लैप लेंथ, right? How you will control the sculpture lap length. So for that you should have a measuring motion, right? You should have a measuring motion. Actually you can see two types of motions. If you see whole type of spinning line as far as sculpture is concerned, for measuring the lap length you will have two types of measuring motions. One is what? Knocking off motion. One is knocking off motion and other is I think hunter cock motion. Knocking off and hunter cock, these two mechanisms we use for measuring the, or we can say controlling the lap length, more accurate word, controlling the lap length. तो ये दोनों मैकेनिज्म के ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, दोनों मैकेनिज्म के ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे हम? नॉकिंग ऑफ। एक आपको समझने के लिए एक छोटा डायग्राम यहाँ पे निकाला है मैंने, कैसे पैसेज रहता है लैप का स्कचर में। तो कैलेंडर रोलर्स रहते हैं एट द एंड ऑफ स्कचर, you will find calendar rollers 1 2 3 4, this is your bottom calendar roller, and the material will come, it will get pressed against the surface of calendar roller, so it will form a sheet. This sheet is get transferred here, again it is pressed here, and again it will go like this, and finally it comes on a lap, right? So in order to give this motion we are having the shell rollers, fluted shell rollers, onto which the lap is there, right? So because of the direction of these rollers, the lap will get rolled up here, the material will get rolled up and it will form a lap. This is simple mechanism. Now यहाँ पे हम कैसे, एक रिक्वायर्ड लेंथ आ गया, एक रिक्वायर्ड लेंथ आने के बाद हमको लैप को कट करना है, तो कैसे कर सकते हैं लैप को कट? बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जनरली ड्राइव कहाँ से आता है? तो ड्राइव जनरली बॉटम कैलेंडर रोलर से आता है, तो मेन ड्राइव से बॉटम कैलेंडर रोलर को ड्राइव जाएगा। अगर इसका ड्राइव हम खत्म कर देंगे, बॉटम कैलेंडर रोलर का ड्राइव हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, तो होगा क्या? इनको ड्राइव नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इसका ये तो चलता रहेगा क्योंकि इसका ड्राइविंग अलग है, फ्लूटेड शेल रोलर चलता रहेगा। कैलेंडर रोलर का ड्राइव हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कैलेंडर रोलर इन रोलर्स को घुमाता है, ये भी कैलेंडर रोलर ही है, ये बॉटम कैलेंडर है, ये टॉप कैलेंडर रोलर्स है, तो ये रोलर घूमना बंद हो जाएंगे, ये रोलर्स क्या हो जाएंगे? घूमना बंद हो जाएंगे। घूमना बंद हो जाएंगे तो क्या होने वाला है? मटेरियल तो अभी भी यहाँ पे है, कुछ अमाउंट मटेरियल अभी भी यहाँ पे है, ये मटेरियल खींच के लेगा। कौन खींच के लेगा? ये फ्लूटेड शेल रोलर खींच के लेगा, क्योंकि अपना लैप चल रहा है, क्योंकि ये फ्लूटेड शेल रोलर क्या हो रहा है? घूम रहा है, अभी भी वो नहीं बंद हुआ है, तो ये मटेरियल को खींच लेगा पूरा, जितना भी बचा हुआ मटेरियल है यहाँ से वो कट हो जाएगा, क्योंकि ये खींच रहा है, यहाँ से मटेरियल आगे नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मटेरियल कट हो जाएगा। और कट होने के बाद जो भी एंड बचेगा, तो ये पूरा एंड किसने खींच दिया? ये अपने लैप ने खींच दिया, क्योंकि आपका ये फ्लूटेड शेल रोलर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ओवरऑल देखो कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क होता है। दिस इज द ड्राइविंग अरेंजमेंट गिवन। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली ड्राइव है, पुलीज है, ये इसको मोटर घुमाता है, राइट? ए पुली एंड बी पुली। यहाँ से आप देखोगे तो ड्राइव कहाँ पे गया है? पिनियन या गियर सी है, हम बोल सकते हैं, पिनियन बोल सकते हैं, पिनियन है एक्चुअली, राइट? तो इसको आपको ड्राइव मिला, सी को ड्राइव मिला आपको, और सी पिनियन डी को घुमा रहा है, सी पिनियन डी को घुमा रहा है,
अब इस पिनियन डी के ऊपर कौन है, यहाँ पे ड्रॉप शाफ्ट है, पिनियन डी के ऊपर कौन है, ड्रॉप शाफ्ट है। और अगर आप ड्रॉप शाफ्ट का अदर एंड देखोगे तो यहाँ पे एक गियर है ई, यहाँ पे एक व्हील आपको दिखेगा ई, और इस व्हील ई का कनेक्शन किसको दिया है, व्हील एफ को दिया है। इस व्हील ई का कनेक्शन किसको दिया है, व्हील एफ को दिया है। और एफ किसको घुमाता है, बॉटम कैलेंडर रोलर को घुमाता है। एफ किसको घुमाता है, बॉटम कैलेंडर रोलर। और फिर बॉटम कैलेंडर रोलर क्या करेगा, ऊपर के कैलेंडर रोलर को भी घुमाएगा और वहां से ड्राइव जाएगा कहाँ पे, फीड को, जहाँ से फीडिंग हो रहा है, मशीन का जो स्टार्ट वाला पार्ट है जहाँ से फीडिंग हो रहा है, तो फीड को ड्राइव जाता है। तो ड्राइव कहाँ से आ गया, पुली से पिनियन सी को आया, पिनियन सी से डी को आया, डी is connected with the drop shaft, other end of the drop shaft has a wheel E, and from wheel E the drive is given to the wheel F, right, and then from there it goes to the feed roller. इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर इस बॉटम रोलर का ड्राइव हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली फीड का कनेक्शन टूट जाएगा, तो फीड से कुछ मटेरियल आएगा नहीं, राइट, जो बचा हुआ मटेरियल है वो फ्लोटेड रोलर लेके चला जाएगा। अब आगे देखो क्या होता है, अगर आप देखोगे इधर बीच में और एक व्हील है ड्रॉप शाफ्ट के इस एंड में, लेफ्ट हैंड में, तो वो कनेक्टेड है आपके फ्लूटेड रोलर के व्हील को, आपके फ्लूटेड रोलर के व्हील को कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर ये दूसरा फ्लूटेड रोलर यहाँ से ड्राइव जाता है, ये दूसरा फ्लूटेड रोलर, तो फ्लूटेड रोलर यहाँ पे घूम रहा है। अब मुझे बताओ कौन से केस में फ्लूटेड रोलर घूमता रहेगा और बॉटम कैलेंडर रोलर बंद हो जाएगा। ऐसा क्या करें हम कि बॉटम कैलेंडर रोलर बंद होना चाहिए और फ्लोटेड रोलर घूमना ही चाहिए, फ्लोटेड रोलर घूमना चाहिए। इस गियरिंग को देख के आपको कुछ समझ में आता है क्या, व्हाट आई कैन डू सो दैट बॉटम कैलेंडर रोलर ड्राइव विल गेट डिस्कनेक्ट एंड फ्लोटेड रोलर विल रोटेट एज इट इज। सर ई को एफ के साथ एंगेज करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा या डिसएंगेज करना पड़ेगा, आपने गलत बताया। ई को एफ के साथ एंगेज करोगे तो बॉटम रोलर घूमेगा, बॉटम रोलर घूमना चालू हो जाएगा, क्योंकि देखो ड्राइव कहाँ से आ रहा है, ड्राइव यहाँ से आ रहा है, ड्राइव ये घूम रहा है, इसलिए ये घूम रहा है, और इसलिए ये घूम रहा है, और ये अगर इसको कनेक्ट हो गया तो ये जो गियर है एफ, ये बॉटम रोलर को घुमाएगा, ये बॉटम रोलर को घुमाएगा। आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ये जो ए इसका डायरेक्ट कनेक्शन बॉटम रोलर को नहीं है, देखो ये मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन मारी है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ सर, हाँ, ये कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है सी को, सी का डी को जा रहा है, डी का ई को जा रहा है, और ई अगर एफ के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये एफ किसको कनेक्टेड है, बॉटम रोलर को कनेक्टेड है, फिर वो एफ घूमना चालू हो जाएगा। एफ घूमना चालू हो जाएगा तो आपका बॉटम रोलर भी घूमना चालू हो जाएगा, बॉटम रोलर भी घूमना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब क्या है, ये अगर एफ के साथ कनेक्ट होता है तो बॉटम रोलर घूमना चालू हो जाएगा, और ये तो इधर घुमा ही रहा है फ्लोटेड रोलर को, सी वाला डी से डी इसके साथ कनेक्ट होके घुमा ही रहा है, तो कौन से केस में बॉटम रोलर स्टॉप हो जाएगा और फ्लोटेड रोलर चलते रहेंगे। तो सीधी बात है, जब आप इस ई को डिस्कनेक्ट करोगे किसके साथ, एफ के साथ, ई को एफ के साथ अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो आपका बॉटम रोलर घूमना बंद हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड फ्लोटेड रोलर घूमते ही रहेंगे। क्यों घूमते रहेंगे, क्योंकि ये तो घूम ही रहा है ना, सी घूम रहा है, डी घूम रहा है, ये फिर ये घुमा रहा है इसको, बट एज यहां से ड्राइव एफ को जाता है और यही ड्राइव हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इधर का कनेक्शन तो टूट गया बट इधर का कनेक्शन तो चालू है, मतलब ये दोनों घूम रहे हैं। अब समझ में आया क्या, क्या यस कर सर, सकते हैं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, तो ई को डिस्कनेक्ट करना है, और ई किसके पास है, ड्रॉप शाफ्ट के पास है, राइट। तो वो कैसे करेंगे आप, अब ये हो गया एक पार्ट, अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग सा है अभी आपको डायग्राम दिया है, थोड़ा इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि सारा खोल के डायग्राम है नहीं मशीन का। यहाँ पे
एक्चुअली जो ड्राइव आ रहा है वो अब यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट है, फ्लूटेड रोलर से एक्चुअली ड्राइव आ रहा है यहाँ पे ड्राइव आ रहा है। ये सारा अरेंजमेंट कहाँ पे, ये सारा अरेंजमेंट कहाँ पे है, ये सारा अरेंजमेंट इस जगह पे है, ठीक है। इसको अब पीछे खींचना है, ई को अब पीछे खींचना है। कैसे खींचोगे ई को पीछे? तो फ्लूटेड रोलर से ड्राइव आएगा, एक फ्लूटेड रोलर है, ये दो है, वहां से ड्राइव आ रहा है, सिंगल वर्म है, सिंगल वर्म है, फ्लूटेड रोलर के दूसरे एंड में सिंगल वर्म है। अब इसका कनेक्शन एक्चुअली इन्होंने ऐसा बताया, ऐसा कुछ तो होगा वो शायद, बट यहाँ पे दिखाया नहीं है। फ्लूटेड रोलर के अदर एंड में, आप समझ लो मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्लूटेड रोलर के अदर एंड में, राइट, फ्लूटेड रोलर के अदर एंड में, मतलब ये अदर एंड है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ड्राइव आ रहा है, ये इसका अदर एंड है, एक सिंगल वर्म है। सिंगल क्या है? वर्म है, मतलब व्हील है, सिंगल टिथेड व्हील है, वर्म बोलते हैं हम, सिंगल वर्म, आपने शायद देखा भी होगा सिंगल वर्म। तो वो सिंगल वर्म क्या करता है, कैरी करता है ड्राइव एक दूसरे व्हील को, कैरी करता है ड्राइव एक दूसरे व्हील को, और वो व्हील किसको घुमाता है? ये अपना व्हील ई को घुमाता है, व्हील ई को घुमाता है। मतलब समझ लो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल वर्म है, मतलब ये यहाँ से ड्राइव आ रहा है एक दूसरे व्हील को, और ये व्हील इसको घुमा रहा है ई को, और ई किसको घुमा रहा है? एफ को। ई किसको घुमा रहा है? एफ को, व्हील एफ को। अब देखोगे आप ठीक तरीके से, तो इस व्हील एफ के ऊपर क्या है? जी, पिन जी है, दिस इज पिन, जो सर्कल दिखा है ना वो पिन है, और ये एक है लैच है, ये क्या है? लैच है। अगर आप देखोगे तो ये पिन है, और ये क्या है? लैच है, ये क्या है? लैच है, ठीक है। अब इस लैच का कनेक्शन किसको दिया है? इस ड्रॉप लीवर एच को दिया है, दिस इज ड्रॉप लीवर, राइट, जो कनेक्टेड है यहाँ पे, दिस इज ड्रॉप लीवर, राइट, जो कनेक्टेड है यहाँ ई की जगह पे, राइट। और इसका अरेंजमेंट देखो कैसे, ये सपोर्ट लिया है जे पे, इसने क्या किया? सपोर्ट लिया है जे पे, जे इज अ कैच, दिस इज अ कैच, राइट। तो जे पे उसने सपोर्ट ले लिया है, और ये लैच यहाँ पे है। अब देखो कैसे मैकेनिज्म फ्लो होता है यहाँ पे। ड्राइव कहाँ से आ रहा है? फ्लूटेड रोलर के यहाँ से आ रहा है, ई को मिल गया, एफ को मिल गया, तो एफ घूमने चालू हो जाएगा, एफ घूमना चालू हो जाएगा। जब ये पिन, सपोज पहले तो पिन ये यहाँ पे था, ये पिन एफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे आ गया। जैसे ही पिन यहाँ पे आता है, जैसे ही पिन यहाँ पे आता है, ये लैच उसमें अटक जाता है, ये क्या हो जाएगा? लैच उसमें अटक जाएगा, ये लैच उसमें अटक जाएगा। लेकिन आपका व्हील तो घूम रहा है, तो ये क्या करेगा? ये पिन इस लैच को आगे खींच के लेगा, इस लैच को आगे खींच के लेगा। जैसे ही आगे खींचेगा तो ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी आगे जाएगा, आपका जो कैच है, कैच भी आगे जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा तो इसका सपोर्ट टूट जाएगा, इसका सपोर्ट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे इसका सपोर्ट निकलता है तो ये नीचे गिरेगा, ये क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगा। एच नीचे गिरता है, मतलब क्या है? वो ई के साथ कनेक्टेड है, वो ई को खींचेगा नीचे, वो ई को क्या करेगा? वो नीचे खींचेगा। जैसे ई को नीचे खींच लिया तो इसका कनेक्शन चला गया, इसका कनेक्शन क्या हो गया? चला गया। जैसे इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बॉटम रोलर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एफ का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो बॉटम रोलर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर फीड का भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड ये घूम ही रहा है, फ्लूटेड रोलर, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो उसके वजह से लैप चल रहा है। तो जो भी बचा कुचा मटेरियल रहता था कैलेंडर रोलर पे, वो सब लैप ले लेगा और अपना लैप कंप्लीट हो जाएगा, अपना लैप कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म, नॉकिंग ऑफ मैकेनिज्म वर्क होता है स्कचर का। अब ये मैकेनिज्म तो देखा हमने, अब इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपने को थियोरेटिकल पार्ट की कुछ जरूरत है नहीं, बट आपको समझने के लिए, क्योंकि एग्जांपल में ले लूंगा तब आपको समझने आएगा कि कैसे कैसे गया वो गियरिंग, तो इसलिए मैंने गियरिंग आपको समझाया। अदरवाइज समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दैट इज अ थियोरेटिकल पार्ट, बट यू शुड नो दैट, दैट्स व्हाई आई हैव
explain that mechanism.